YouTube ਚੈਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦੀਪ ਅਮਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਹਾਣੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬਿਤਲੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਖਿੰਡੇ ਖਿੰਡੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇਖ ਬੁੱਢਾ ਬੰਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਬੈਠਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲਾਵੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਸਦੀਪ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਊ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ, ਚੱਲ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰਟਿਆ ਹੋਈ ਜਵਾਬ, ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਮਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲ ਜੋਤਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਉਠਾ ਆਖਦੀ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਲਾਡ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਮੈਂ ਖਿਝ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਬੇਬੇ, ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨੱਸ ਤੁਰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਆਖਦੀ, ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਏ, ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਅਰਦਾਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਖ ਦਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲਦਿਆਂ ਆਖਦਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ। PR ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 10 ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ
कनेडा ने ही लैके दिती सी। भावें इत्थे रहिंदियां एक दहाका गुजर गया है, पर दिल अज भी पिंड विच धड़कदा है। बस हुण तां पिंड जाण लई काला जिहा पिया रहिंदा है मन। पीआर होई नूं भी 1 साल बीत चुका है ते हुण मैं सोचदा इस साल सर्दियां विच बेबे नूं ओहदी नूं लिया ही देवां। ओहदियां भी रीझां पूरीआं हो जाणगीआं, नाले ओहदे बुढ़े हत्थां तो होर किन्ना कुछ रोटियां पकवावांगा। ਇਹ सोचदा मैं मनो मनी हस पिया। इन्ने नूं जसदीप की कन्नी पई आवाज़ ने मैनूं मुड़ पिंड तो कनेडा वापस ले आंदा। चल भाऊ जॉब ते नहीं जाना? बस वीर 1 मिनट रुक, टिफिन फड़ लवां। मैनूं रस्ते विच गुरु घर ड्रॉप कर देवीं। जे तेरा दिल भी मंनदा है तां तू नहीं चल, जल्दी वापस आ जावांगे। नहीं नहीं वीर, मेरी बचपन तो ही नहीं बनी पाठी साहब नाल। बाबा अरदास करदियां करदियां काफ़ी लम्मा समा लगा दिंदा है ते तूं बड़े धर्मी ने अरदास होण तो पहलां हिलना भी नहीं। ये गल जसदीप नूं बड़ी रड़कदी हर वार की तरह, पर वो अगों मैनूं कोई सवाल जवाब ना करदा। चल भाऊ मैनूं ही छड्ड दे गुरु घर। चल चलीए फिर। जसदीप नूं गुरु घर छड्डण तो बाद मैं अपनी जॉब की रोज़ाना की रूटीन ते डटिया। बस हुण तां काम ते भी पंजाब दीयां यादां आउंदियां रहिंदियां ने ते आउण भी क्यों ना। इन्ना लम्मा अरसा जो बीत गया सी पिंड तो आया, हुण तां पिंड भी खासा बदल गया होना है। बेबे भी बाली काली है मेरे विआह लई। विआह दे नाम ते पता नहीं क्यों एक खुमारी जी चढ़ जांदी है। बस खंभां दी घाट है, नहीं तां औकाब बन के झट उड़ जाना सी पिंड वाल नूं। सोचां विच खुब्बिया पता ही ना लगा दिन कदों लंघ गया ते मैं रोज़ाना वांग थक्किया टुटिया घर वाल नूं तुर पिया। घर पहुंचदियां जसदीप दा बेबे वांग लैक्चर फिर शुरू हो गया। अज मोबाइल क्यों नहीं लैके गया तू? तेरे बापू जी दा कई बार फोन आ चुका है पर मैं पिक नहीं किया। चल हुण तू आ गया है, फ्रैश हो जा ते फिर घर फोन कर लई। मैं अगों थके टुटे ने उसकी गल का जवाब दिंदिआं कहा, कोई ना वीर रुक के करदा, बेबे ने अपनी नूंह लभ लई होनी है। बेबे जे कल ही दसदी सी तेरी भूआ ने दस पाई है कुड़ी दी। ये कह मैं मनो मनी मुस्कुराउंदा बाथरूम वाल नूं तुर पिया। होर भाऊ किद्दां लंघी फिर दिहाड़ी? जसदीप ने बड़े मजाकिया अंदाज विच पुछया। बस कुर्सी ते लंघी, जिहड़ा तेरा बापू छड्ड के आया सी काम ते मेरे लिए। तू हट जा भाऊ मशकरियां करनों, नाले तू अपने अंदर दा छड़ा सांभ के रख। मैं कई बार देखा तेनों अपनी गुआंढण डॉर्थी वाल गहरियां अखां नाल तकदिआं। जिस दिन उसके हसबैंड माइकल नूं पता लग्या, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर पैक करवाउंदिआं देर नहीं लाउणी। जसदीप ने मजाक करदिआं मैनूं नहोरा जिहा मारिया ते अगों मैं भी अपनी जीव की धार तिखी कड़ी अपने दिल के तहखाने अंदर बंद अपने छड़े नूं बाहर कढ़दिआं बोल ही पिया। तू तां है ना वड्डा दुੱਧ धोता, फिर तू हरेक वीकेंड ते की करन जांदा है रेबन क्लब विच? अगों जसदीप कच्चा जिहा हो आखण लगा, ना ना मैं तो उत्थे अपने जिगरी यार पम्मे नूं मिलण जाना, उत्थे काम करदा है जिहड़ा, तू जानदा तां है उहनूं। मैनूं पता है तेरे वड्डे जिगरी यार पम्मे दा, वो तां तैनूं देख मूंह इंज घुमा लैंदा जिवें मनो मनी कह रहा होवे, आ गए साले मुफ्त दा खाण वाले। ये गल कहण दी देर सी, जसदीप भी हस पिया ते मैं भी, ते फिर पता नहीं कदों साड़ियां दोहां दीयां अखां भी रात दे हनेरे विच किधरे अलोप हो गईयां। सवेरे अलार्म वजण तो पहला ही मेरे मोबाइल ते बापू का फोन बज पिया। बापू मैं रुक के करदा फोन, मैं सौना ही अजे। बापू की थिरकदी आवाज़ ने जिवें मैनूं एकदम हलूण के रख दिता ते मैं झट अखां मलदे उठ के बैठ गया। पुत्त तू जल्दी घर वापस आ जा, तेरी बेबे बहुत बीमार है, बस जल्दी आ जा। बापू की काम की आवाज़ ने मैनूं अंदर तक झंझोड़ के रख दिता। मैं एकदम डरदिआं कहा, बापू मेरी गल तां कराओ बेबे नाल, उत्ते वो एमरजेंसी च आ, तू बस जल्दी घर वापस आ जा। एक है बापू अपने अथरू रोक ना सकिया। अज मैं पहली बार अपने बापू नूं इन्ना बेबस देखिया सी। सवेर उठदिआं ही मैं बाई प्रदीप नूं फोन कीता ते शाम दी ही अमृतसर एयरपोर्ट की टिकट बुक करवा ली। अज छुट्टी है ते छुट्टी किसी आम छुट्टियां वर्गी नहीं सी। अगे ते छुट्टी वाला दिन झटपट लंघ जांदा।
पर अज तां गुट ते लगी घड़ी दी सूई दी टिक टिक दी आवाज़ भी किसी कन्नां विच किसी सोगी गीत दे विरलाप वांग गूंज रही सी। लिखदियां ढैंदियां दिन लंघिया ते शाम नूं 5 वजे दे करीब जसदीप मैनूं एयरपोर्ट ते ड्रॉप कर आया। मेरे मना करन दे बावजूद भी जसदीप मैनूं $3000 दिंदियां बोलिया, पिंड चलां है, काफ़ी खर्च आउणा है उत्थे। ਇਹ ਕਹਿ ਉਹ वापस घर वालों निकल गया। मन बड़ा उदास सी। पिंड तक 30-35 घंटिया का सफ़र काफ़ी लंबा सी। 2 घंटे वेटिंग हाल विच 2 दिन वांग लंघे। मन बहुत उदास सी। वो खुशी नहीं सी जो होनी चाहिए सी पिंड जाण दी। आखिर जहाज़ टर्मीनल ते आण लगा ते इमीग्रेशन होने तो बाद मैं जहाज़ विच अपनी सीट ते आ बैठा। जहाज़ टेक ऑफ तो 2 घंटे बाद एयर होस्टेस ने मील ऑफर करदे मील बोर्ड ते रख दिता, पर कुछ भी खाण लई मन ही नहीं सी कर रहा। पानी का एक तुक्का भी संग विचों उतरन लई तैयार नहीं सी। पूरे हफ्ते की थकावट कारण मेरी अख लग गई ते पता ही न लगा प्लेन कदों अपना अद्धा पैंडा तय कर गया। एयर होस्टेस की मारी आवाज़, डू यू वांट एनीथिंग सर? शब्दां ने मैनूं आण जगाया। मेरे मना करन तो बाद अगे तुर गई। मन डरिया पिया सी। बस वाहिगुरू अगे अरदास करन तो बगैर मैं कर भी की सकदा सी। अज पहली बार मैं इन्नी लंबी अरदास विच शरीक होया सा ते ओह अरदास सी मेरी मां, मेरा जिउंदा जगदा रब, बस वो ठीक हो गई। अरदासां जोदड़ियां करदियां पता ही ना लगा कदों मैं अमृतसर एयरपोर्ट ते पहुंच गया ते अगों मेरे चाचे दा पुत्र ते मेरे बचपन दा यार मैनूं लैण लई आए खड़े सन। एक फर्जी जही मिलनी तो बाद वो मैनूं गड्डी विच लै गए। मैं बहुत हैरान सा। मैं 10 सालां बाद पिंड आया ते इन्हां दे चेहरिਆਂ ते खुशी दा भाव तक नहीं सी झलक रहा। 2 घंटे सफ़र करन तो बाद असीं पिंड पहुंचे। घर विच विआह वर्गा माहौल सी। चानणियां कनातां लगियां होईयां सन। गर्मियां दे दिन जो सन। दूरों घर लगे टेंट नूं देख मैनूं लग्या सब ने रल के मैनूं फूल बनाया है। 10 साल बाद अपने घर की दहलीज नूं पार करदिआं मेरा कालजा मूंह नूं आ गया। आसमानी बिजली एकदम धरती ते हंड गई। मेरी निक्की भैन सिर ते चिट्टी चुनी लई मैनूं बाहां दे कलावे विच लैंदिआं भुब्बा मार होण लगी। बेड़े विच चिट्टियां चुनियां लई बैठियां औरतां नूं देख मेरा मत्था चकरा गया ते मैं ना चाहुंदे होई भी गोडियां भार डिग गया। उच्ची उच्ची रोंदियां मैं अपना सिर गोडियां विच लै लिया। मैं लुकना चाहुंदा सी पर धरती मैनूं वेहल नहीं सी दे रही। बापू तां बंदियां विच सिर सुट के इंज बैठा सी जिवें उहदे विच किसे नाल अखां विच अखां पा के गल करन दी हिम्मत ही ना रही होवे। बंदियां दे दस्सण ते एकदम उठिया ते मैनूं डुसकदियां देख कलावे विच लैंदिआं भुब्बा मार होण लगा। पता नहीं किवें उसने इस दुखां दे दरिया नूं अपने अंदर ढक के रखा होया सी ते अपने जिगर दे टोटे नूं देख इस दरिया दे चफेरे लगे सारे बंध टुट गए। बारी बारी चाचियां ताइयां भूआ भाबियां मैनूं मिलियां पर एक कोई इंसान सी जो मैनूं मिलण लई अजे तक नहीं सी उठिया, जिसनूं मेरे पिंड आउण दी सदा झाक लगी रहिंदी सी। अज मेरे पिंड आउण ते ओह आप पिंड छड्ड गया सी ते ओह सी मेरी मां, मेरा जिउंदा जागदा रब, जो अज मंजे दी हिक ते पई आराम कर रही सी। मेरा रब सौ गया सी। मेरे इस रब नाल कदी मैं सौंदा सा पर अज इस रब नाल एक सुक्का कान्हा पिया सी। अज रब मंजे दी हिक नाल लग्या चिट्टे कफन विच लिपटिया बन्ना विच बद्धा शायद उਡੀਕ कर रहा सी अपनी आखिरी मंजिल वल जाण दी ते अपने आखिरी घर दा पैंडा तय करन लई मेरे मोढियां दा सहारा पा रहा सी। पर बीबे अज तां मैं खुद तेरे नाल गुरु घर जाण नूं भी तैयार हां ते अज मैनूं गुरु घर अरदास विचों नस तुरन दी भी कोई जल्दी नहीं। तू एक बार मेरे कोल आ जा दोबारा, हुण कदे मैं तैनूं छड्ड के नहीं जांदा। एक बार तां उठ के देख, आ गया है तेरा पुत्त। पर मेरे घर पहुंचदे ही चारे पासे पसरी चुप टुट गई ते एक हलचल चारे पासे खिलर गई। किरने विरलाप रोना कुरलाउणा शुरू हो गया।
पर मैं तो अजे बेबे के ख्यालों विच ही गवाचिया सा। मैं तो अजे अपनी मां नूं रज के देखिया तक नहीं सी। ਉਹਦਾ फुल्लां वर्गा चेहरा देख इंज लग रहा सी जिवें वो सुत्ती पई होवे ते मेरी बेबे कहे आवाज़ मारन ते उठ जाग पवे। पर बेबे हुण कदी नहीं सी उठना। मेरे मन अंदर उठ रहा सोचां दा तूफान रुकण दा नाम ही नहीं सी लै रहा। परदेस ने भावें मैनूं बहुत कुछ दिता सी, पर चंदरे पैसे दे लालच ने मैनूं तबाह कर दिता। आखिर क्यों मैं 1 साल पहला ही PR हुंदिआं घर ना आया? आखिर क्यों मैं सारी उम्र भजदा रहा, दौड़दा रहा इस पैसे पिछे, ते अज मेरा रब मैनूं मिले बगैर इस जहान तो अलविदा लै गया। अज मेरे कान मां दी एक आवाज़ सुनने लई तरस रहे सन। मैनूं अज भी याद है बचपन विच जदों बेबे मैनूं गुरु घर लै जांदी, हमेशा एक गल ते जोर दिंदे आखदी, वाहिगुरू अगे सच्चे दिल नाल कीती अरदास कदे व्यर्थ नहीं जांदी पुੱਤ। मैं वाहिगुरू अगे अरदास कर रहा सां, बस बेबे नूं एक बार जगा देण ते मैनूं बेबे बाहां दे कलावे विच लैंदे आखे, आ गया मेरे लाडिया। इनू मेरे चाचे दे पुੱਤ ने मैनूं बाहां दा सहारा दिंदिआं कंध दे कोले नालों उठालदिआं पुराणियां यादां दे गलियारिਆਂ विचों बाहर कढदिआं पैरां भर खड़ा कर दिता। ते फिर पाठी साहब दे बोलां दी गूंज चारे पासे कुल कायनात विच खिलर गई। बोलो जी वाहिगुरू, अरदास एक ओंकार, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वाह श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ने हमी सहाय। हर जन हर गोविंद नो सिमरहु, श्री हर राय। अरदास मेरे कन्नां विच पै रही सी, परंतु मैं तो अजे आखिरी अरदास विच शामिल भी नहीं सा होया। ते भाई साहब ने अज इन्नी जल्दी अरदास शुरू कर समाप्ति वाल बदलना भी शुरू कर दिता सी। अरदास विच सारे मौन खड़े सन, एक मैं सा ते एक मेरी तन्हाई, जो आपस विच गल्लां कर रहे सन। यह आखिरी अरदास कदे ना मुक्की। अज भी अरदास पहला वांग लंबी हो जावे। जपियां तपियां जिना नाम जपिया, वंड के छड़िया, देख सिलाई ते गवाही। देख के अनविट किता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान पै